Hello, everybody. Good evening. My name is Vishu Rajpal. So, the topic of today's session is caring for our child's smile from infancy to teens. हमारे लिए हमारे बच्चे की स्माइल बहुत मैटर करती है, तो उसकी केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड वो जो है जो बता सकते हैं वो उसके एक्सपर्ट ही बता सकते हैं. सो वी हैव समवन हु इज एक्सपर्ट इन दिस प्रोफेशन. So let me invite Dr. Karun. Hi, Dr. Karun. Well, please introduce yourself. Hello, I hope you're doing good. Hello, Yeah, everyone. you. Dr. Karun Bantia. I'm a pediatric dentist practicing at Mumbai. So I've done my post-graduation in pediatric dentist. My both BDS and MDS are from Nair Hospital Dental College, which is one of the most renowned institute in India. So I am a gold medalist at my post-graduation exam of the university. And I am an exclusive pediatric dentist with a lot of passion and commitment towards maintaining child's oral health. And we focus a lot on preventive care. My aim is that the people should be aware of how early prevention, early diagnosis can help a child to maintain a good dental attitude. So that is what we strive for. Okay, correct. So let's start. Our first question is: many parents feel that milk teeth are not important because they fall out. Why is this a big myth? See, milk teeth are not important. It's a very big myth. Like आपने जैसे बोला, क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि दूध के ही दांत है गिर जाएंगे, बट ये बहुत बड़ी गलत फहमी है. What happens is milk teeth are the one who lays down the foundation for a permanent teeth. So it not only helps you in eating, but it helps in development of speech. It helps in the child to have overall well-being. इसीलिए milk teeth are absolutely important. You can't deny that. Does it even affect a child's speech, eating habits, or the permanent teeth? Yes, absolutely. क्या होता है कि there are some teeth which helps in development of speech. जैसे आगे के दांत होते हैं, तो they help you in talking for sound. अब अगर आप देखोगे जैसे जिनके दांत गिर जाते हैं, those children are not able to develop a good speech. They start stammering. इसीलिए they are important in development of speech. At the same time, जैसे पीछे के दांत होते हैं, तो the child can eat well. तो उससे खाना उनको अच्छे से डाइजेस्ट होगा. They'll be able to take in the nutrients very well, and they'll be more healthy. सो दैट्स वाई. एंड मोर ओवर क्या होता है, ये जो दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो परमानेंट आने वाले दांतों के लिए जगह बनाए रखते हैं. तो जब वो परमानेंट दांत आता है तो वो उनको अपनी जगह पे लाने में मदद करता है. इसीलिए ये दांतों को मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो मतलब दूध के दांत, यस, इन शॉर्ट मतलब दूध के दांत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं एक बच्चे के लिए. लेकिन क्या होता है आजकल ना, बच्चे चॉकलेट्स एंड इवन द कुकीज आर फुल ऑफ चॉकलेट्स, मीठा इतना ज्यादा खाने लग गए हैं बच्चे. तो व्हाट वी हैव सीन इज कि उनको देयर आर लॉट ऑफ किड्स हु आर फेसिंग डीके टूथ का प्रॉब्लम. एंड व्हाट इफ इट इज इग्नोर्ड? उसको क्या हम मतलब कर सकते हैं, मतलब उसके लिए अगर हम इग्नोर करते हैं उससे, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे को? जैसे कि बहुत बार होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि दूध का दांत गिर जाएगा, बट वो एक ट्रेंड में गिरते हैं. कोई आगे के दांत 6-7 साल की एज में गिरते हैं, पीछे के दांत 10-11 साल की एज में गिरते हैं. तो क्या होता है, जब दांतों में कैविटी लग जाती है तो एक तो खाना फंसना स्टार्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा उस टाइम पे खाना बंद कर देता है. तो हिज न्यूट्रिशन सफर्स. सबसे पहले वो खाना बंद करता है तो बच्चे का न्यूट्रिशन सफर हो जाता है. कभी कभी क्या होता है, कुछ दांतों में कैविटी इतनी डीप हो जाती है कि इट रीचेस द गम्स एंड वो सूजन के जैसे आ जाती है, तो इन्फेक्शन हो जाता है. तो इट इज सीन एज पस, या कभी कभी बाहर से सूजन भी आ जाती है. तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है प्रॉब्लम को. इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर you go to your pediatric dentist, get it checked, and do an early treatment. Okay, and when is the first time एक बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए? That's a very good question. Age, I mean? That's a very good question actually. Ideally, as soon as the first milk tooth, जैसे मुंह में पहला दांत दिखता है, every mom should take the child to the dentist because your dentist will help you out. वो आपको बता सकेंगे कि आपको बच्चे के दांत का ध्यान कैसे रखना है, ओरल कैविटी का ध्यान कैसे रखना है. और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई बच्चों को दांत डिले होते हैं कि फर्स्ट बर्थडे तक भी नहीं आते. तो अगर वो एज में भी दांत नहीं आते हैं तो फर्स्ट बर्थडे के पहले तो एब्सोल्युटली यू शुड टेक योर चाइल्ड टू द डेंटिस्ट सो दैट दे विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग द ओरल हाइजीन एंड सी कि क्यों, क्या रीजन हो सकता है कि दांत भी डिले आ रहा है, एंड हेल्प यू आउट विद मेंटेनिंग द हाइजीन.
ओके एंड यूजुअली इट हैपेंस जब बच्चे के दांत नहीं निकलते हैं, जब तक पहला दांत भी नहीं निकला है, इज इट रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द माउथ ऑफ द किड विद वाटर और सम टूथपेस्ट और समथिंग जब दांत नहीं निकला, ओनली गम्स की केयर के लिए? Yes, absolutely. You should clean the cleaning or the oral hygiene should start before the touching of teeth. मतलब क्या होता है जो हम गम पैड्स बोलते हैं, बेसिकली जो पेडी लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में कहीं तो जिसको पेडी बोलते हैं, उसको जब मदर फीड करती है एवरी टाइम आफ्टर द फीड, जब जब वो फीड करती है उसके बाद उनको वो गम्स को क्लीन करना होता है। उससे क्या होता है कि जो दूध होगा या कुछ भी रेजिड्यू रह गया उधर तो साफ हो जाएगा, बैक्टीरिया भी होंगे तो वो निकल जाएंगे, तो बच्चे का हाइजीन मेंटेन रहेगा। और इससे क्या होता है बच्चे को बचपन से ही एक आदत पड़ जाती है कि मुंह को साफ रखने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि वो बड़ा होगा तो ब्रशिंग करने में उसको भी इजी होता है। Okay. And what is the best way to clean baby's gums after breastfeeding or bottle feeding? What you can do is you can take a warm soft cloth, maybe a muslin cloth ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा गीला करना है, मेक श्योर इट इज वेरी क्लीन एंड वॉश्ड। नहीं तो क्या होता है कभी कभी वो उसके वजह से भी बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, तो मेक श्योर इट इज वेरी क्लीन, डैम्पन इट मतलब थोड़ा गीला कर लो उसको और गम पैड्स पे जस्ट जेंटली मूव कर लीजिए। एंड स्पेशली इट शुड हैपन एट नाइट, जब बच्चा सोता है वो टाइम पे वो मैंडेटरी करना ही है, जब रात का लास्ट फीड देते हैं उसके बाद आपको ये करना है, ताकि उस एरिया में से दूध भी निकल जाए और कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं है। ओके ऐसा भी कुछ मिथ है क्या कि रात को जो क्या कहते हैं जो नाइट वाला फीड होता है दैट इज रिस्की फॉर बेबीज ओरल हेल्थ, इज दैट सो? इट्स नॉट अ मिथ, इट्स ट्रू। आई वुड से क्या होता है कि जब रात में बच्चे सोते हैं तो वो दूध जो होता है मुंह में, द मिल्क टेंड्स टू कूल डाउन, मतलब दांतों के आजू बाजू में, गम्स के आजू बाजू में रह जाता है, एंड वो टाइम पे अपना सलाइवा जो बॉडी जो थूक बनाती है वो भी कम हो जाता है, उसके वजह से वो दूध रहने के वजह से वो साफ भी नहीं हो पाता है, और पूरी रात मतलब पूरी 7 से 8 घंटे जब बच्चा सोता है तो वो दूध उसके आजू बाजू में रह जाता है, और वो ज्यादा टाइम मिलता है वो बैक्टीरिया को दांत पे अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से कैविटी और इजीली हो जाती है। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि रात में तो आपको मैंडेटरी साफ करना ही है, वही आइदर विद ब्रशिंग, और अगर दांत नहीं है तो गम पैड्स को क्लीन करना है। When one should start brushing with a toothbrush, एक बच्चे का जो दांत है, टूथब्रशिंग शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली वंस द फर्स्ट टीथ कम्स। तो पहला दांत आता है तभी आप स्टार्ट कीजिए, उस टाइम पे यू कैन मे बी यूज अ फिंगर ब्रश एंड स्मीयर साइज, मतलब एकदम हल्का सा पेस्ट लेना है, बट इट हैज टू बी फ्लोरिडेटेड। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स इन माय क्लिनिक एज वेल जो बोलते हैं कि हमको फ्लोरिडेटेड पेस्ट नहीं यूज करना है, बट वी शुड यूज अ फ्लोराइड पेस्ट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि कैविटी लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और टीथ ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। तो यू शुड स्टार्ट ब्रशिंग एज सून एज द फर्स्ट टीथ कम्स। ओके एंड सबसे बड़ा ये जो प्रॉब्लम है आज का, ये चॉकलेट, जूसेस, पैक्ड स्नैक्स जो हैं, ये बच्चे के दांत को कैसे डैमेज करते हैं? सी इफ यू सी अभी आजकल जो बच्चे खाते हैं इट्स मोर ऑफ प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड होता है, तो उसमें एक तो शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, दे आर मोर स्टिकी, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स व्हिच आर मोर स्टिकी, जैसे कि लाइक चॉकलेट्स लाइक एक्लेयर्स और समथिंग लाइक दैट व्हिच टेंड्स टू स्टिक, even any wafers which get stuck on the tooth is staying for a very long period of time, so that creates environment easily, उससे क्या होता है बैक्टीरिया इजीली अटैक कर पाते हैं दांत पे और वो बहुत देर तक रहता है। बच्चे जूस टेट्रा पैक्स पीते हैं जिसमें भी शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अनदर प्रॉब्लम व्हिच वी सी नाउअडेज इज चिल्ड्रन ईटिंग फूड विद टीवी टाइम और स्क्रीन टाइम, तो उससे क्या होता है 15-20 मिनट में जो खाना खत्म होना चाहिए दे ईट फॉर एन आवर, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, तो जितना ड्यूरेशन मुंह में खाना ज्यादा रहेगा वो कैविटी लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कोई कोई बच्चे क्या करते हैं लास्ट मॉर्सल मुंह में रख के छोड़ देते हैं, एंड पेरेंट्स आल्सो टेंड टू इग्नोर इट, उनको ध्यान में नहीं रहता है, तो वो जब मुंह में खाना फंसा हुआ रहेगा तो बच्चों को कैविटी ज्यादा ही लगेगी। तो मेक श्योर एवरी टाइम आफ्टर फूड यू आस्क योर चाइल्ड टू गार्गल। तो एक सिंपल ट्रिक होता है, अपन यू शुड आस्क द पेशेंट टू स्टैंड, द चाइल्ड टू स्टैंड नियर द वॉश बेसिन एंड आस्क हिम टू से द लेटर टू। तो जब टू बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली ही विल लर्न टू स्पिट इट आउट, तो जब वो थूकना सीखेगा तो ऑटोमेटिकली गार्गल करके ही विल स्टार्ट स्पिटिंग आउट, वो खाना फंसने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। दैट्स अ गुड टिप यू कैन टेक, मेक श्योर योर चाइल्ड इज मेंटेनिंग। Correct. So saying two will help, kids learn to spit and
Yes, correct, correct. And what basic lifestyle for oral health only I'm asking, क्या करना चाहिए अपने मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या क्या उनको मतलब ऐसे कौन से जो है हैबिट्स को फॉलो करने के लिए सिखाना चाहिए ताकि कि उनको हम ओरल हेल्थ उनकी अच्छी रख सकें? See, first and most important thing is brushing twice. Whatever it is, make it a habit. Every child should brush twice, morning and night. एंड एक कॉमन चीज हम जो देखते हैं क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं डॉक्टर मेरा बच्चा तो 2 बार ब्रशिंग करता है फिर भी उसको कैविटी क्यों लग रही है, तो देन व्हाट वी आस्क इज ब्रशिंग करने के बाद वापस कुछ खाता है क्या वो? तो बहुत बार रात में ऐसा होता है कि बच्चे ब्रशिंग कर लेते हैं, देन दे गो एंड द पेरेंट्स फीड देम मिल्क, दूध दे देते हैं, या फिर रात को कुछ स्टिकी फूड दे देते हैं, तो वो पूरे रात रह जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि बच्चे दिन भर बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, सो अपार्ट फ्रॉम 4 मील्स आई डोंट थिंक यूजुअली यू रिक्वायर एनीथिंग। और जो इंटरमीडिएट मील्स बोलते हैं स्नैकिंग, जो जैसे हो गया अभी चलते फिरते एक चॉकलेट खा लिया, एक वेफर खा लिया, उससे क्या होता है कि मुंह में जो बैक्टीरियाज है वो बढ़ जाते हैं और वो दांत पे ज्यादा इजीली अटैक करते हैं, तो वो हो गया। अनदर थिंग यू शुड डू इज रेगुलर फॉलोअप्स करने चाहिए, एवरी 6 मंथ्स यू शुड गो टू योर डेंटिस्ट, गेट इट चेक। इसका रीजन क्या होता है कि इवन देयर इज अ स्मॉल कैविटी, द डॉक्टर कैन कैच इट एंड वो फिलिंग के स्टेज पे ही शायद रुक जाए, आपको शायद रूट कनाल ना करना पड़े, निकालना ना पड़े। तो जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो दैट्स हाउ वी फोकस मोर ऑन प्रिवेंशन। आप जल्दी जाएंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम भी कम होगी। और दूसरी चीज, टिल द 8 years of age द ब्रशिंग हैज टू बी सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज मतलब बच्चे का ब्रशिंग पेरेंट्स को देखना है और मेक श्योर दे ब्रश ऑल द कॉर्नर्स। इन अ सिंपल लैंग्वेज, जब तक बच्चे के स्किल्स डेवलप नहीं होते, जब तक बच्चा अपने शू लेसेस टाई नहीं कर सकता है, बिकॉज शू लेस बांधना भी एक ट्रिक है, तो brushing is also a trick. Till the time the child doesn't know to tie a lace, the parents should do the brushing or at least supervise it both the times. Okay. So these are the small things which you can do and make sure कि बच्चे को उससे cavity कम लगेगी। Okay. And it is like you know, it is clearly said, हम लोगों ने बहुत सुना even when my daughter was very small कि दूध का दांत खुद गिरता है, ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है पेरेंट्स के साथ जब वो मिल्क टीथ जो है निकलवाना पड़ सकता है? ये यूजुअली जब होता है तब दांत की कैविटी है बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है, जब हम दांत को बचा नहीं सकते हैं। उसमें कैसा होता है कि दांत के या तो पीसेस हो जाते हैं और टुकड़े हो जाते हैं, या कभी कभी सूजन इतनी होती है। सूजन में क्या होता है, बेसिकली आजू बाजू में पस हो जाता है। तो जैसे पहले कहा मैंने कि परमानेंट दांत जो होता है वो प्राइमरी दूध के दांत के एकदम बाजू में होता है, तो वो हम नहीं चाहते कि वो पस उस परमानेंट दांत को खराब करे। तो उस केस में हम यूजुअली क्या करते हैं कि मिल्क टीथ को निकाल देते हैं और वहां पे जरूरत पड़े तो स्पेस मेंटेनर देते हैं, जिससे वो दांत परमानेंट दांत एटलीस्ट हेल्दी स्टेट में आए। या तो जब बहुत सूजन हो, ऐसा लगता है कि बचाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो उन केसेस में दांत को निकालना पड़ता है। Okay, and what if it is left untreated? Leaving untreated is not a good option. What happens is, जैसे कि बताया कि वो परमानेंट दांत दूध के दांत के बहुत बाजू में होता है, तो उसका इन्फेक्शन वहां तक पहुंच सकता है और उसकी जो कैल्शियम वगैरह को कम कर सकता है और दांत की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है परमानेंट दांत को। तो हम अनजाने में परमानेंट दांत को भी डैमेज कर देते हैं। इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर यू गेट इट ट्रीटेड। डोंट थिंक ये तो गिरने ही वाला है। करेक्ट। एंड एक मॉम का भी इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आया कि उनकी बेटी जो है 7 साल की है लेकिन उसके अभी मिल्क टीथ जो है गिरे नहीं है, तो इज दैट ओके? See, first thing I would recommend them is जहाँ पे भी रहते हैं, they can go and visit a pediatric dentist, ask them क्यों नहीं गिरे हैं। And usually अभी क्या होता है, since the child eats a lot of processed food, उनके fibrous food कम हो जाते हैं, जैसे कि raw carrots हो गए, raw cucumbers हो गए, beetroots, तो the teeth are not getting enough stimulus, तो जब तक वो नहीं होता है तो गिरते भी नहीं है। तो बेस्ट थिंग इज आई वुड रेकमेंड टू विजिट अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट। और अगर सामने के दांत नहीं गिर रहे हैं और अगर लूज नहीं है, तो you till then you can start eating maybe raw foods which will make sure कि वो दांत थोड़ा मूव हो और अपने आप से गिर जाए। But better to visit a pediatric dentist, that would be more better. Okay. And Dr. Karun, I recently heard about one thing which I really was excited to know about the plus and minus of both the things. But क्या होता है, lack of knowledge की वजह से हम उसको ignore कर देते हैं. So I want few details about it. I'm very excited to know even. It is about the laughing gas. मैंने ऐसा सुना है कि लाफिंग गैस जो होता है ना, वो भी बच्चों के डेंटल ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इट प्लीज? यस, लाफिंग गैस जो रूटीनली हम लोग उसको हैप्पी गैस बोलते हैं। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वो लेमन टर्म में बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। उससे क्या होता है कि जो बच्चों का डर और एंजाइटी होती है वो काफी कम हो जाती है।
and it ओके, helps the treatment very easier for the child, for the parent and for the pediatric dentist. तीनों के लिए काफी easy हो जाता है उससे. मतलब एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ़ लाफिंग गैस से हो जाता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है. एनेस्थीसिया मतलब जनरल एनेस्थीसिया, तो पूरा बेहोश करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती है. लोकल एनेस्थीसिया अगर जरूरत है तो वो तो देना ही पड़ेगा. बट जो पेन का परसेप्शन होता है, जो डर होता है, वो काफी कम हो जाते हैं. बच्चों को बहुत बार ऐसा होता है कि उनको फील भी नहीं होता है कि हमने उनको इंजेक्ट किया है. जब दांत निकालते हैं तो बच्चों को दे हैव नो फीलिंग, दे आर लाइक कि हमको पता भी नहीं चला. तो इट्स दैट काइंड ऑफ फीलिंग. एंड वो उससे क्या होता है कि बच्चे को बहुत पॉजिटिव attitude develop hota hai, that's very easy, I could do it, and that basically they are very proud of themselves and they are like yes I've got it done. So it's easier for them that way. एंड इज़ इट सेफ फॉर द किड्स? मतलब उसमें उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ तो नहीं होते हैं बच्चों के लिए? It is absolutely safe as long as a trained person is doing. Make sure आप जहां पे भी जाओ, जहां पे भी, ये यूजुअली इसके नाम से कॉन्शियस सेडेशन के नाम से जाना जाता है, या हैप्पी गैस हो गया, लाफिंग गैस से. मेक श्योर योर डॉक्टर इज ट्रेन्ड टू डू दैट एंड इट इज एब्सोल्युटली सेफ. द मोमेंट इट इज रिमूव्ड इट इज टोटली रिवर्सिबल. ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद आपको कहीं एडमिट होने की जरूरत है. आप यू विल बी इमीडिएटली रिलीव फ्रॉम द क्लिनिक. नो मेजर पोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन. Okay, and will the child be unconscious while using laughing gas? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. दैट इज द डिफरेंस. जब जनरल एनेस्थीसिया जो बोलते हैं, अभी बहुत कॉमन है कि जब बच्चा बैठता नहीं है तो बच्चे को बेहोश करके ट्रीटमेंट किया जाता है. ये उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट है. इसमें चेयर साइड ही डेंटल क्लिनिक में ही प्रोसेस होता है. बच्चा पूरे टाइम अवेक रहता है, अलर्ट रहता है. जैसे अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि आप अपना मुंह खोलिए, आपको या तो स्पिट करना है तो स्पिट कीजिए, ही इज टोटली अलर्ट, ही इज टोटली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. इट इज जस्ट दैट उनकी थोड़ी एंजाइटी, जो डर है, वो कम हो जाता है उससे. Okay. And a mom has asked one question: why does mouth smells? If is it due to teeth cavity or something else? There are many reasons to it. One could be cavities along with swelling alongside it. दूसरा रीजन होता है कि अगर बच्चे ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं और कहीं पे प्लाक रह जाता है. वन मोर रीजन कुड बी लैक ऑफ टंग क्लीनिंग. अगर टंग क्लीन नहीं की जा रही है तो उस पर भी खाना रह जाता है, जिसकी वजह से स्मेल आती है. और एक हो सकता है कि अगर आपने रूटीनली ब्रशिंग नहीं करने की वजह से ये स्मेल आएगी. और पानी का इंटेक भी अगर कम होता है बच्चे का, जिसमें ड्राइनेस हो जाती है मुंह में, तो भी मुंह से स्मेल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. That is equally in adults too, I guess. पेट साफ नहीं है या पानी का इंटेक कम हुआ तो I think. Okay. A mom has asked a question. मेरे बेटे के टीथ में कैविटी है, 4.5 years का है वो बच्चा. डेंटिस्ट से चेकअप करा चुके हैं, सो ये दोबारा टीथ आएंगे तब ऐसा ही आएंगे या कैसे रहेगा वो? नहीं, कैविटी मिल्क टीथ इस एक अलग है और दूध परमानेंट दांत अलग होता है, तो उसकी कैविटी उसमें नहीं जाएगी. बट मेक श्योर, जैसे मैंने पहले बताया है, कि उसका इन्फेक्शन परमानेंट दांत तक नहीं पहुंचना चाहिए. तो अगर डॉक्टर ने जो भी रेकमेंडेड ट्रीटमेंट बताया, मे बी अगर वो फिलिंग है या रूट कनाल है, व्हाटएवर, गेट इट डन, तो यू विल बी श्योर कि आपका परमानेंट दांत अच्छे जगह पे आएगा और अच्छा हेल्दी रहेगा वो टाइम पे. ओके. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि दादी नानी के नुस्खे जो होते हैं ना, वो सबसे पहले हर चीज में आ जाते हैं. तो इवन माय मॉम इज वेरी मच, अ मॉम हैज आस्क्ड, इज एलएम वाटर गुड फॉर माउथ एंड गम इश्यूज, फॉर क्लीनिंग एंड गार्गल? ये सब चीजें क्या बच्चों के लिए भी अच्छी हैं क्या? आप 2 बार ब्रशिंग कीजिए एंड गार्गलिंग कीजिए. दैट इज द एब्सोल्यूट थिंग व्हिच यू कैन डू. एलम वाटर और एनीथिंग इज यूजुअली नॉट. इनफैक्ट एलम का टेस्ट भी थोड़ा खट्टा और पंजेंट होता है, तो चाइल्ड विल नॉट एक्सेप्ट इट. रादर टूथपेस्ट व्हिच आर चाइल्ड फ्रेंडली आर मोर एक्सेप्टेबल बाय द चिल्ड्रन. सो आई डोंट recommend such things for children at least. Okay, and we are not doing any promotions, but do you recommend any particular toothpaste for these small kids? Means there is no promotion here, just for the helping moms. See, any particular good toothpaste for the? See, paste का selection is based on the age of the child and the hygiene status क्या है. I would not generalize it, but I would recommend parents to use a fluoridated paste. क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि parents are very apprehensive. I don't know why. Maybe they have seen some content on Instagram, which is the usual thing which they mention कि, and which are usually not of healthcare professionals. कि they recommend कि आपको fluoride use नहीं करना है. Fluoride से आपका बच्चे का हेल्थ स्टेटस पे प्रॉब्लम होगा, मेंटल स्टेटस पे प्रॉब्लम होगा. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपको फर्स्ट तो फ्लोरिडेटेड पेस्ट यूज करना मैंडेटरी है.
और फर्स्ट, और हम जो क्वांटिटी बताते हैं बच्चों को पेस्ट का वो बहुत कम होता है। अगर बच्चा अगर स्वॉलो भी कर लेता है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि एक 1.25 साल का बच्चा होता है तो हम स्मीयर साइज बोलते हैं। जैसे 2 से 3 साल का बच्चा हो गया तो राइस साइज, मतलब चावल के दाने जितना। और उसके बाद 3 से 6 के लिए मटर जितना। तो ओके, इतना कम क्वांटिटी होता है फ्लोराइड की, इवन इफ दे इंजेक्ट, अपने को कोशिश करनी है कि बच्चा उसको स्वॉलो करे ही नहीं, बट फिर भी कर लेता है तो इट इज स्टिल सेफ। करेक्ट, तो यूजली हम क्या करते हैं, 6 साल के नीचे के बच्चों के लिए 450-500 ppm ऑफ फ्लोराइड। तो कोई भी पेस्ट, जैसे कि जरा मल्टीपल अवेलेबल, जैसे पेडीफ्लोर हो गया, चीरियो करेक्ट। हो गया, ड्यूरेंट है, हुँ, कैंडी पॉप प्रो है, एनीथिंग विच हैज 400 to 500 ppm फ्लोराइड इज गुड फॉर अ चाइल्ड बिलो 6। एंड 6 के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनको हम, अभी जो हमारे रिकमेंडेशन होते हैं, जैसे कि हर कम्युनिटी का रिकमेंडेशन होता है, जैसे AAPD एक अमेरिकन अकेडमी है जो बच्चों के दांतों के लिए हुँ, देखती है, इंडियन अकेडमी करेक्ट, भी होती है दांतों की। तो उन्होंने रिकमेंडेशन यूजुअली देते हैं कि 6 साल के बच्चों के ऊपर के लिए आज के टाइम में 1000 ppm फ्लोराइड होना ही चाहिए। तो वो यूजुअली अपने जो आयुर्वेदिक के पेस्ट होते हैं, नॉन आयुर्वेदिक बेस्ड, एनी हुँ, हुँ, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, तो दैट इज ऑल्सो ओके। बट अगर आपको लगता है आपके बच्चे को उसका टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो देन यू कैन अगेन यूज चाइल्ड पेस्ट लाइक पेडिफ्लोर 1000 हो गया, कैंडी पॉप प्रो हो गया। करेक्ट, So such things are okay for a child who's above 6. Make sure, but that time your child should spit out everything. उस टाइम पे उसको swallow नहीं करना है। तो अगर आपको ओके, थोड़ा भी डाउट है कि बच्चा swallow करता है तो then don't use a high fluoride content. ओके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो बच्चों को डेंटल विजिट के लिए प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। सो हाउ कैन पेरेंट्स प्रिपेयर देयर चाइल्ड फॉर डेंटल विजिट्स? उसके लिए कैसा होता है कि यू शुड फर्स्ट नॉट मेक इट स्कैरी। अपने हम्म, पर्सनल स्कैरी एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर नहीं करना है। जो आपके साथ हुआ है, जस्ट ट्रीट इट एज अ रूटीन विजिट। टेल देम इट इज गोइंग टू बी फन, द डॉक्टर इज गोइंग टू काउंट योर टीथ, डॉक्टर इज गोइंग टू टेल यू हाउ यू आर सपोज टू ब्रश। मेक इट फन rather than making it sound like a checkup or you're going to a hospital. Make it sound it's a routine part and parcel of your life. The child will be more accepting towards it. okay, so these are the common mistakes we parents do sometimes. We tell them our some habits or experiences जिसकी वजह से बच्चे और डर जाते हैं. ओके, एंड अ मॉम हैज आस्क्ड वन क्वेश्चंस, उनकी बेटी का मिल्क टीथ जो है वो ये है, एंड इट इज ब्रोकन सिंस इट केम आउट, टू नो विल इट कम आउट नॉर्मल टीथ और द सेम? How old is the child? She must be 7, I think. The same mom has asked the same question before also. See, 7 years में teeth आया है तो I'm assuming it's a permanent teeth and usually tooth broken नहीं आता है. So there is a chance the child must have had a trauma. Basic बच्चा कभी गिर गया होगा. Make sure कि वो दांत generally टूटा हुआ है या नहीं, क्योंकि अंदर से जब वो दांत आता है तो वो टूटा हुआ नहीं आता है कभी भी। तो Correct. रूल आउट कि कभी टूटा है, मतलब कभी मार लगी है या कुछ लग के टूट गया है, या दूसरा कैविटी तो नहीं हो गई है जिसके वजह से पेरेंट्स को लग रहा है कि वो टूट गया है। तो जस्ट रूल आउट दोस थिंग्स एंड विजिट योर डेंटिस्ट। Okay. And a mom has asked, उनकी बेटी 15 years की है, उनका जो आगे का दांत है, अपर फ्रंट टीथ, वो स्लाइटली क्रूक्ड है. प्लीज एडवाइस इफ ब्रेसेस नेसेसरी और नॉट. Yes, braces will be required. Usually 15 years तक सब परमानेंट दांत आ जाते हैं एंड इट्स अ गुड टाइम दैट आप अपने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं तब। Okay, okay. And most important question which I am getting from so many moms, ये मेरे सर्वे में भी बहुत आया, कि डेंटिस्ट और पेरेंट्स ये मिलके कैसे एक डेंटल केयर को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बना सकते हैं. ओके, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें इट्स अ ट्रायड, हम क्या बोलते हैं कि चाइल्ड, पेरेंट एंड द पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, इट्स अ ट्रायड, इट्स अ थ्री वे रिलेशन। तो हम्म, all three should be in the same team. Then you can give a good treatment to the child. So parents should communicate everything to the doctor कि what are the problems which are faced. Be trustworthy कि अपना जो भी आपका issues faced है, tell them. The dentist should at the same time be very transparent with what is going on, क्या expected है out of the result. Give them motivation कि क्या result अपने को चाहिए. Give them oral hygiene instruction, and at the same time when they both work in the same team they would be able to render out a good oral care for the child, and the winner ultimately is the child, which everyone wants it to be. करेक्ट, करेक्ट. एंड एक मॉम का क्वेश्चन है, माई डॉटर्स न्यू टूथ हैज कम इन फ्रॉम बिहाइंड बिफोर हर मिल्क टीथ हैज फॉलन आउट. इज इट नॉर्मल? शी इज 8 years.
No, it's not normal. Like how we discussed, I think some other mom had also asked कि मेरे बच्चे का दांत नहीं गिरा है. So ideally the tooth should have fallen down by 6.5, 7. And make sure अगर वो हिल नहीं रहा है तो then go and visit your dentist and get it checked. Because it should have ideally fallen down by now. But if it has not and if it is not loose, you might have to get it removed. Because what will happen is नहीं तो alignment change हो जाएगा काफी. Okay. And there is a toothpaste, Candy Cop. Is it a Yeah, good one for 4.5? Again, no promotions, but somebody has asked, so I'm asking it. it's good. You can use it. ओके एक मॉम का क्वेश्चन है मेरे कजन के बेटे के टीथ 4 में ही आ गए सबने बोला है इतनी जल्दी आ गए हैं तो बहुत जल्दी गिर भी जाएंगे इज इट अ मिथ और अ ट्रू फैक्ट Nothing like that. It's see usually ideal age of teeth coming is 6 months, but 4 months is also okay. It is slightly earlier, but nothing to worry of. And there is no way कि it will fall early. Just keep on monitoring well. How the other teeth are coming, कैसे आ रहे हैं. Just keep a watch. If you feel कि it's little and any which is अगर teeth आ गए तो it's a very right time that they visit their pediatric dentist. जैसे first tooth आते ही they should go to the dentist. मीन्स इट इज नॉर्मल एक और It मॉम का is क्वेश्चन usually है कि इस साल के बच्चे के दांत आना नॉर्मल है सो इट इज वेरी नॉर्मल है 4 मंथ्स के बच्चे को आ रहे हैं तो hardly there's a difference. Okay, and I would like, the last question of today is what is that one advice you want to give to every parent here so that they can keep a, healthy oral lifestyle for their kid? उनकी oral health को वो बहुत ध्यान दे सके instead of ignoring it या due to lack of knowledge हम उसको ignore कर रहे हैं मतलब इसके लिए what advice you can give? See, I would tell all of you all, remember one thing, dental care is not about fear or treatment. It is only about prevention and taking guidance. क्या होता है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि मिल्क टीथ टेम्पररी है क्यों उनको ट्रीट करना है बट उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि वो खाने में हेल्प करते हैं स्पीच में हेल्प करते हैं चाइल्ड के ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं एंड व्हेन अ चाइल्ड gets a visit of a dental visit earlier which is more positive he is more confident in terms of getting anything treated. And I would say never wait for pain to arise to visit your dentist because जब pain आ रहा है मतलब it's a situation which is out of control. So do a regular follow-ups, be consistent, be regular like in your oral hygiene, brushing twice करना है, be regular in your planning management, brushing twice, gargling, rinsing. Make sure you're not eating intermittent meals. That will solve most of your problem. Like going only to the dentist is a 20% of part. Remaining 80% care can be taken at home. So and any healthy smile start at home. So and beyond that, if anything comes, we are always there to help you out. So ये जो घर पे मैंने जो बताया वो अगर आप करोगे, most of the things are under control. And even if you visit your dentist, I don't think you will have a lot of issues are popping up. Correct. So it was a great session. Thank you, Dr. Karun, for taking out time. Questions तो कभी खत्म नहीं होंगे अगर हम बच्चों के बारे में पूछना चाहेंगे. But you must be having so many commitments. So as discussed, I'll not take much more time of yours. But it was really nice आप यहाँ पे आए. आपने हमारे बहुत सारे questions का answer दिया. And we would love to see you again soon with us with a lot of new more informations. And thank you so much, Dr. Karun, for coming and giving a lot of informations to the moms. Thank you once again. Thank you. It was wonderful. Same here. Yeah. Bye. Bye. So thank you everyone for joining us. Hope आपको बहुत सारे questions के answers मिले होंगे. बहुत सारी moms जिन्होंने यहाँ पे questions पूछे थे हमसे live sessions में, उनको उनके answers मिले होंगे. But still, if you have any questions, you can write down in the comments. Dr. Karun will try to reply you as soon as possible. अगर आपके कुछ भी questions हैं जो शायद इस सेशन में रह गए हों या कुछ लोग इस सेशन को बाद में भी देखने वाले हैं तो अगर उनके भी कुछ क्वेश्चंस अगर हम मिस कर गए हैं तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स वील श्योरली ट्राई हम उनको जल्दी से जल्दी आंसर कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन एंड बाय बाय. सी यू टुमारो अगेन.